السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی اہم سرخیوں پر۔ گیان واپی مسجد کمپلیکس کے تہہ خانے میں پوجا کا آغاز، ورشپ آف پلیسز ایکٹ کی خلاف ورزی، ایک اور 6 دسمبر ہو سکتا ہے، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا خبردار۔ وزیر اعلیٰ اندرولی جلسے میں مزید 2 گارنٹیوں پر عمل آوری کا کریں گے اعلان، لوک سبھا انتخابات کی مہم کا جمعہ سے ہوگا آغاز۔ سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے حلف لے لیا، پارٹی قائدین سے فردن ملاقات۔ میرچل ضلع کے یمنا پیٹ میں تیز رفتار ٹرک نے طالب علم کو دی ٹکر، حالت نازک۔ اور 2 ویلرز کے سرقے کی وارداتوں میں ملوث ٹولی گرفتار، مسروقہ 2 ویلرز ضبط، چار مینار پولیس کی کارروائی۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا جوہری۔ دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ گیان واپی مسجد کمپلیکس کے تہہ خانے میں پوجا شروع ہو گئی ہے۔ ہندو فریق کے وکیل وشنو کمار جین نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وارانسی کی عدالت نے ہندوؤں کو تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دے دی تھی اور رات سے ہی پوجا کا آغاز شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران انتظامی کمیٹی کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست بھی داخل کی گئی تھی، لیکن اعلیٰ عدالت نے درخواست کی عاجلانہ سماعت سے انکار کیا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وارانسی عدالت کی طرف سے گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر سنائے گئے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یہ فیصلہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ملک میں ایک اور 6 دسمبر ہو سکتا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ آج جج صاحب کا آخری دن تھا، ریٹائرمنٹ تھا،
दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना ये है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमा के दिन लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का आगाज इंदरवैली से करेंगे। इम्कान है कि वज़ीर आला मुनक़्क़दा जलसे आम में मज़ीद 2 गारंटियों पर अमलावरी का ऐलान करेंगे। पता चला है कि 500 रुपये गैस और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही पर अमलावरी का ऐलान करेंगे। रेवंत रेड्डी ने 3 साल पहले इंदरवैली में जलसे-ए-आम मुनक़्क़िद करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात की मुहिम का भी इंदरवैली से आगाज़ किया था और इस वक्त ऐलान किया था कि वो सरकारी तौर पर इंदरवैली का दौरा करेंगे। ऐलान के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमा को सरकारी तौर पर दौरा करेंगे और लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का बिगुल बजाएंगे। इस जलसे-ए-आम में वज़ीर आला मज़ीद 2 गारंटियों पर अमल आवरी का ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में प्रजापालना ज़ैली कमेटी के इजलास में हासिल करदा दरख्वास्तों पर जायजा लिया। इस इजलास में बताया गया कि रियासत भर में प्रजापालना की 5 गारंटियों के लिए 1,09,01,255 दरख्वास्तों का इंदराज हुआ है। 12 जनवरी तक डाटा एंट्री का इंदराज हुआ है। 12 जनवरी तक डाटा एंट्री का अमल मुकम्मल हुआ। दरख्वास्त गुजारों में बाज़ ने 1 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल करने का डाटा एंट्री के जरिए पता चला है। जुमला 2,82,000 डुप्लीकेट दरख्वास्तों की निशानदही की गई है। राशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर नहीं है या फिर गलत नंबर इंदराज किए गए दरख्वास्त भी मौजूद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इन दरख्वास्तों की दोबारा जांच करने की हिदायत दी है। इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टे कुमारका के अलावा दीगर काबीनी वज़रा और आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासत की तरक्की में न्यू डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर जनरल पांडियन ने ताउन करने का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में मूसा नदी को खूबसूरत बनाने प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। मूसा नदी के इलाके को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देने के लिए मनसूबाबंदी की गई है और साथ ही साथ मूसा नदी की तरक्की के साथ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी से पाक कुदरती वसाइल को नुकसान न पहुँचे, इसको नज़र में रखते हुए तरक्की दी जाएगी। इसके अलावा आम आदमी की सहूलत के लिए हैदराबाद में दूसरे मरहले के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और रियासत भर में टेक्नोलॉजी तरबियती इदारों के क़याम में ताउन करें।
हॉस्पिटल की तामीर, तालीमी इदारे, बिल्डिंग्स की तामीर रियासत भर में करने के लिए और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के क़याम के लिए माशी तौर पर मदद करने में ताउन करें, जिस पर पांडियन ने कहा कि रियासत की तरक्की में उनकी तरफ से जो ताउन होगा वो करेंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर काबीना उज़रा भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को अबूरी बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में किसी भी तरह की कोई तब्दीली न करने का ऐलान किया। अपनी तकरीर में वज़ीर फाइनेंस ने दावा किया है कि अवाम पुरुम्मीद हैं, अवाम मुस्तक़बिल की तरफ देख रहे हैं और वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान वज़ीर फाइनेंस का कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी ने जब 2014 में इक़्तिदार संभाला तो कई चैलेंजेस का सामना था। अवाम के मफाद में कई काम अंजाम दिए गए, रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम किए। अवाम ने हमें दूसरी बार मुंतखब किया। हमने जामे तरक्की की बात की। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ हम आगे बढ़े। गरीबों, ख़वातीन, नौजवानों और किसानों की बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फ़ायदा हुआ है। GST के ज़रिए वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स को मुमकिन बनाया जा सका। मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने G20 की सदारत की। अमृत काल में हमारी हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ अपनाएगी जिससे सबकी तरक्की होगी। सोलार सिस्टम के ज़रिए 1 करोड़ ख़ानदानों को 300 यूनिट बरक़ी मुफ्त मिलेगी। 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके दिए जाएंगे। रेलवे में हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 रेलवे बोगियां वंदे भारत के तहत बनाई जाएंगी। 10 सालों में हवाई अड्डों की तादाद दुगनी होकर 149 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हिंदुस्तानी मईशत में गैर मामूली बेहतरी आई है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि गरीबों को बाइख्तियार बनाना हमारा मकसद है। हम 2047 तक विकसित भारत का मंसूबा रखते हैं। 25 करोड़ अफराद को सतह गुर्बत से ऊपर लाया गया। आला तालीम के लिए लड़कियों की तादाद में 28% का गुज़िश्ता 10 साल में इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत बेहतर और मुस्तहकम है। अवाम की आमदनी में औसतन 50% का इजाफा हुआ है। आने वाले 5 साल गैर मामूली तरक्की के रहेंगे। आयुष्मान भारत को आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स में भी तोसी दी जाएगी। आने वाले 5 सालों के दौरान आवास योजना के तहत 2 करोड़ मकानात तामीर किए जाएंगे। 5 इंटीग्रेटेड इको पार्क भी कायम किए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत 1 करोड़ खवातीन को लखपति बनाया जाएगा। लक्षद्वीप को सियाहती मुकाम के तौर पर और तरक्की दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मजीद मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का मंसूबा रखती है। इसके लिए कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने मुतवस्सित तबके के लिए अमकना स्कीम का ऐलान किया और कहा कि आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ रूरल मकानात तामीर किए जाएंगे। इससे कबल काबीना ने मरकजी बजट को मंजूरी दी। वज़ीर फाइनेंस ने सदर जमहूरिया मुर्मू से भी मुलाकात की। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी हुकूमत के अलहिसाब बजट को अक़लियतों से नाइंसाफ़ी से ताबीर किया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन अक़लियतों की तालीम, समाजी बहबूद के लिए रुक़ूमात में कमी कर दी गई। 47 लाख करोड़ रुपए के बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई, जो बजट का 0.0006 होता है। उन्होंने मरकजी बजट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुसलमानों को हुनरमंद बनाने की स्कीम की रकम घटा दी गई। मौलाना आज़ाद फेलोशिप की रकम कम कर दी गई। तालीम व हुनरमंदी से अक़लियतों को दूर रखा जा रहा है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, दीगर तालीमी अगराज के लिए बजट में मामूली गुंजाइश रखी गई। मौलाना आज़ाद फेलोशिप की रकम 96 करोड़ रुपए में इजाफे के बजाय इसको कम करके 45 करोड़ रुपए कर दिया गया। ओवरसीज स्टडीज़ के लिए ख़र्च की रकम भी कम की गई। मुसाबक़ती इम्तहानात के लिए अक़लियती उम्मीदवारों के लिए शुरू की गई स्कीम को ख़त्म ही कर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट के लिए साल 2023-24 में 64 करोड़ 40 लाख रुपए मख्तस किए गए थे। नए बजट में महज 3 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2013-14 के बजट में यूपीए हुकूमत ने अक़लियतों के लिए जो बजट मख्तस किया था, गुज़िश्ता 10 साल के दौरान में महज अलामती इजाफा किया गया, लेकिन खर्च में कमी कर दी गई। कई स्कीमात को या तो घटा दिया गया या इसको मनसूख कर दिया गया। सबका साथ कहने वाली हुकूमत ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा है वो इस बजट से ज़ाहिर होता है। साबिक़ वज़ीर आला व गजवेल हल्के के रुकन असम्बली के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के दिन ऐवान असम्बली में स्पीकर के चैम्बर में हलफ लिया। असम्बली स्पीकर गडम प्रसाद ने KCR को हलफ दिलाया। इस मौके पर असम्बली उमूर इंचार्ज श्रीधर बाबू, असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी के अलावा BRS पार्टी के साबिक़ वज़रा, अरकान मुक़न्नना और दीगर कायदीन मौजूद थे। KCR जब असम्बली पहुंचे तो उनका खैर मकदम करने के लिए सैकड़ों BRS कायदीन जमा थे। हलफ लेने के बाद KCR ने उनसे फ़र्दन फ़र्दन मुलाकात की।
हुकूमत ने ग्राम पंचायतों के मुंतखब सरपंचों की मियाद की तकमील पर ग्राम पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुरात का ऐलान किया है और इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे के मुताबिक कलेक्टर्स और जिला मजिस्ट्रेट्स को इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो तहसीलदार या मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, मंडल एजुकेशन ऑफिसर, मंडल पंचायत हेल्थ ऑफिसर या इसी रुतबे के ओहदेदार को उनकी इलमदारी के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों का स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करें। ये ओहदेदार ग्राम पंचायतों के सरपंचों के तफवीज़ फ़राइज़ अंजाम देंगे जब तक नए सरपंचों का इंतखाबात नहीं होता और जब तक वो ओहदा नहीं संभालते। स्पेशल ऑफिसर्स अपनी खिदमात अंजाम देते रहेंगे। ग्राम पंचायतों की मियाद 1 फरवरी को ख़त्म हो रही है। सरपंचों ने नए इंतखाबात तक उन्हें बरकरार रखने अदालत से दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदलिया के फैसले के बाद ही हुकूमत ने स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुरात का ऐलान किया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी के सरपंचों से कहा है कि वो सरपंचों के ओहदे से सुबकदोश हुए हैं, अवामी खिदमत से नहीं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 5 साल में तेलंगाना आवाम की खिदमत की है। ग्राम सरपंचों के ओहदे से सुबकदोश होने पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। केटीआर ने कहा कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना देहातों में पल्ले प्रकृति व नालू शमशान घाट कायम किए हैं, मुल्क के लिए एक मिसाली खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि सुबकदोश सरपंच मजीद अवाम की खिदमत करें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बलदियात में अदम एतमाद तहरीक पर रोक लगाने में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटीज़ के सदूर ने अदालत से रुजू होते हुए दरख्वास्त की है कि कलेक्टर्स को नोटिस देने पर रोक लगाएं। बलदी कानून के मुताबिक 2019 में अदम एतमाद तहरीक को मंजूर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क़वायद वज़ा करने से पहले अदम एतमाद तहरीक पेश करने से रोका जाए। अदालत ने दोनों फरीक़ैन की समाअत के बाद मुदाखलत करने से इनकार करते हुए दरख्वास्त गुजार की रिट को मनसूख कर दिया। प्रजा भवन के रूबरू एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ही ऑटो को आग लगा दी। आग लगाने के दौरान वो भी मामूली झुलस गया। तफसीलात के मुताबिक मुआशी परेशानियों से दिलबर्दाश्ता होकर महबूब नगर के चंदनावली के रहने वाले 35 साला ऑटो ड्राइवर ने शराब के नशे में अपने ही ऑटो को प्रजा भवन के रूबरू जला दिया। उसका कहना है कि किराया बराबर न मिलने की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया है। वो फिलहाल मियाँपुर में रह रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। अहमद बलाला ने जुमेरात को मलकपेट चादरघाट ब्रिज के पास रेलवे अंडरब्रिज के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने काम की तकमील के सिलसिले में मुतल्लिका महकमे जात के अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मुतल्लिका महकमे जात के अहदेदार और मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC के अहदेदारों के हमरा अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में NP2 पाइपलाइन और CC रोड के तरक्याती कामों का मुआयना किया। मज़कूरा प्रोजेक्ट्स 55 लाख रुपए की लागत से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने अहदेदारों को कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अवामी फलाह व बहबूद के कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने ESL क्लस्टर साउथ निकलेश कोठारी और हेड लाइटिंग ESL T रमेश के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर ESL कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तरक्याती कामों के अलावा दीगर उमूर पर बात की गई। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
ملت کی خواتین کو درپیش دینی و سماجی مسائل، عصری علوم، شعور بیداری کے مقصد سے خواتین کی دینی یونیورسٹی جامعۃ المومنات کے زیر اہتمام ہفتہ اتوار 3 اور 4 فروری کو عیدگاہ میرعالم نزد زو پارک پر 2 یومیہ کل ہند خواتین کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس جامعہ کے بانی و صدر نشین ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ہفتے کو کانفرنس کے دن 10 بجے اس کا آغاز ہوگا۔ ملک بھر سے علماء کرام، مفتیان کرام، اہل علم و دانش، پروفیسر صاحبان شرکت کریں گے۔ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی قلیل احمد اس کا افتتاح کریں گے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی، سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی، رکن اسمبلی محمد مبین و دیگر قائدین کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ کانفرنس کا مرکزی موضوع عورت اسلامی معاشرے میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کانفرنس کا شیڈول جاری کیا۔ مختلف ریاستوں سے مندوبین شرکت کریں گے۔ جامعہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صابر پاشا نے خواتین سے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ اس جامعہ میں 2500 سے زائد طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ سائبر آباد کی عطاپور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع سلیمان نگر 9 نمبر، چنتل، حسن نگر اور پہاڑی میں پولیس کی طرف سے چہارشنبے کی رات تلاشی مہم انجام دی گئی۔ راجندر نگر ڈی سی پی سی ایچ سرینواس کی نگرانی میں یہ مہم انجام دی گئی۔ عطاپور کے انسپکٹر پی یادگیری نے میڈیا کو بتایا کہ علاقے میں مختلف چوراہوں کا دورہ کیا گیا۔ عوام میں قانون کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہ مہم چلائی گئی۔ نوجوانوں کو رات دیر گئے غیر ضروری نہ گھومنے کی تاکید کی گئی۔ مقررہ وقت پر دکانات اور کاروباری اداروں کو بند کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ رات 12 بجے کے بعد غیر ضروری گھومنے سے گریز کیا جائے۔ اگر کوئی وجہ ہے تو اس سے واقف کروائیں۔ میرچل ضلع کے یمنا پیٹ میں ٹرک کی ٹکر سے 20 سالہ بی ٹیک کا طالب علم شدید زخمی ہو گیا۔ متاثرہ نوجوان سرندھی کالج میں سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ہرشیت اور ہرشیتا امتحان دے کر لوٹ رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ زخمی طالب علم کی حالت نازک بتائی گئی ہے اور اسے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ٹرک ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع بدھا نگر میں 30 سالہ گھریلو خاتون جیوتی کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا۔ دوسری طرف متوفیہ کے افراد خاندان جیوتی کے شوہر کرشنا پر اپنی بیوی کو مارنے کا الزام عائد کیا ہے۔ متوفیہ کے افراد خاندان نے ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے۔ پولیس نے مشتبہ موت کا کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ چارمینار پولیس نے 2 ویلرز کے سرقے کی وارداتوں میں ملوث سارق اور مسروقہ 2 ویلرز رکھنے والے 2 افراد اور 3 جرائم کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ عبداللہ خان اور اس کے 3 جرائم ساتھی سرقے کی 4 وارداتوں میں ملوث تھے۔ پولیس نے عبداللہ کے ساتھی محمود خان اور عمران کو بھی گرفتار کیا جو مسروقہ 2 ویلرز اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس ٹولی کے قبضے سے 2,20,000 روپے مالیتی 5 مسروقہ موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا۔ جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹکر مار کر فرار ہونے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تیز رفتار کار نے 2 بائکس کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 3 افراد بشمول خاتون زخمی ہو گئیں۔ ٹکر مار کر فرار ہونے والے ڈرائیور اور گاڑی کی تلاش جاری ہے۔ راجندر نگر حیدرگڑھ چوراہے کے قریب ایک پاگل شخص کی طرف سے گاڑیوں پر سنگباری کرنے سے ہلچل دیکھی گئی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاگل شخص سڑک پر بیٹھ گیا اور یہ اچانک چلتی بس کے پیچھے کے نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن بس ڈرائیور کی طرف سے فوری بریک لگانے پر وہ محفوظ رہا۔ پاگل شخص کی حرکتوں کی وجہ سے مصروف شاہراہ پر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ بعد میں پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور پاگل شخص کو وہاں سے ہٹایا گیا۔
और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के तहखाने में पूजा का आगाज, वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट की खिलाफ वर्जी, एक और 6 दिसंबर हो सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया खबरदार। वज़ीर आला इंदरवली जलसे में मजीद 2 गारंटियों पर अमल आवरी का करेंगे ऐलान। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का जुमा से होगा आगाज। साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हलफ ले लिया, पार्टी कायदीन से फर्दन फर्दन की मुलाकात। मेरचल जिले के यमुनापेट में तेज रफ्तार ट्रक ने तालिब इल्म को दी टक्कर, हालत नाजुक। और 2 व्हीलर्स के सरक़े की वारदातों में मुलव्विस टोली गिरफ्तार, मसरूक़ा 2 व्हीलर्स जब्त, चार मीनार पुलिस की कार्रवाई। और नाज़रीन इसी के साथ 4 TV खबरनामे का फिलहाल ही इख्तिताम होता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।